So today we will discuss about the third part of the sponges, and in the third part of the sponges we will discuss about the types of canal system and then some basic characters, and here we will finish today's video. In the next video we will continue with our next phylum, which is phylum Coelenterata. Okay, so in the types of canal system, the first type of canal system that you get is called as what type? Ascon type. Okay, three types of canal system we will get. What is canal system? What are the functions of canal system? These things I have already discussed in my last video. In this video we will discuss about the typification of canal system. So three types we will get. The first type is Ascon type, the next type will be Sycon, and the last one will be Leucon, and each type is simpler than the आगे वाला type. Like Ascon is the simplest. Ascon से थोड़ा सा complicated होगा क्या? Sycon. Sycon से थोड़ा और complicated होगा क्या? Leucon. Like that. So as we will progress ahead in our typification, we will get that the system also gets complicated, the system also gets complex, and I will also tell you the reason why this system gets complex, why they have an edge over the other. That reason we will also discuss, but that I will discuss when we move to the second type. The first type that we are discussing it over here is your Ascon type, and you can see in Ascon type I have written few points that Ascon type is the simplest type of canal system. Example भी दे दिया है, example याद रखना बहुत जरूरी, मैच द कॉलम आता है, ठीक है. And then in every type of canal system we will have to discuss about the water flow pattern. Now it has been said that Ascon type of canal system जिसमें भी होगा वो organism का body एकदम simple होगा, and कैसा simple होगा? वैसा होगा जैसा हम लोगों ने already discuss किया है रिगार्डिंग कि कैसा होता है एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पॉन्जेस. वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी इस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है. दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ body with simplest type of canal system. What will we see in them? Ingressing water going inside through ostia, coming where? Into the spongocoel. The moment water comes into the spongocoel, osculum narrows down, collar cell traps the food. Once the trapping is done, the osculum will again broaden. It will get broad, it will open and it will dilate, whatever you say, and the water from the spongocoel is going to move out. So this is our water flow pattern, and that is what we have written over here. Ingressing water going inside through ostia, coming into spongocoel, the collar cells of spongocoel, collar cells which are lining the spongocoel, okay, they will trap the food. Once the trapping is done, the water will come to the osculum, and from osculum it will go out. So this is your first type of canal system. Now we will move to the second type of canal system, and what is the necessity of bringing another type of canal system when you already have one type? When you already have Ascon type of canal system, what was the necessity of some sponges to bring another type of canal system which is more complex? Why that necessity was there? We will discuss it in the second type of canal system. Okay, you can make notes. So this is your second type of canal system, and in this second type of canal system you can see the name of the canal system is Sycon type. Okay, complexities यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है. पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग करेंगे. देखो, जो नॉर्मल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, उस डायग्राम में ये जो सेल्स मैंने ब्लू में ड्रॉ किया, इसको मैंने क्या बुलाया था? पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, है ना. ये लाइनिंग द ओस्टिया, पोरोसाइट्स लाइनिंग द आउटलाइन ऑफ द बॉडी, पिनाकोसाइट्स, है ना. अंदर का लेयर इज स्क्वानोडर्म, जिससे कॉलर सेल निकला हुआ है, स्पोंजोसील, ये तो है. यहां पे क्या बोला जा रहा है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पिनाकोसाइट्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ डार्मेल लेयर. माने ये जो पिनाकोसाइट्स है, ये पिनाकोसाइट्स ने माइटोसिस किया, एंड माइटोसिस करके पिनाकोसाइट ने अपने जैसा और भी कुछ सेल्स बनाया. वो सेल्स यहां से आगे की तरफ निकला, और निकल के उस सेल ने एक एक्स्ट्रा इस तरीके का कवरिंग लाया. तो ये जो एक एक्स्ट्रा इस तरीके का कवरिंग फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ? जब यहां का पिनाकोसाइट्स ने माइटोसिस करके कुछ सेल बनाया, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस, वो करके जब कुछ सेल्स बनाया, कुछ और पिनाकोसाइट्स बनाया, और उन पिनाकोसाइट्स को अपने से थोड़ा दूर जाके सेटल होने के लिए बोला. तो पिनाकोसाइट्स यहां से डिफरेंशिएट करके बना, तो थोड़ा दूर गया, सेटल हुआ, और सेटल होके ये वाला लेयर बन गया. ये वाला जो लेयर बना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? दिस इज कॉल्ड एज डार्मल ओस्टिया, ठीक है. तो वही है, टू फॉर्म अ डार्मेल लेयर, एंड दिस डार्मेल लेयर, सॉरी
टू फॉर्म अ डार्मल लेयर, और इस लेयर को हम लोग क्या बुलाएंगे, इस लेयर को हम लोग डार्मल लेयर बुलाएंगे, ठीक है। एज वेल एज हम लोग क्या देखेंगे, पहले जब ये डार्मल लेयर नहीं था, जैसे कि एस्कोन टाइप में हम लोगों ने देखा ये डार्मल लेयर नहीं है, तो उनमें जो ऑस्टिया होता है वो ऑस्टिया कहां होता है, बॉडी वॉल में होता है। अब ये थोड़ा सा चेंज होगा, जब डार्मल ऑस्टिया यहां का पिनाकोसाइट्स जब कुछ कुछ माइटोसिस करके सेल को आगे भेजेगा और भेज के डार्मल लेयर बनाएगा, तो ऑस्टिया मेन बॉडी वॉल से हट जाएगा और डार्मल लेयर में आ जाएगा। तो डार्मल लेयर में हम लोग कुछ कुछ इस तरीके का ओपनिंग देखेंगे। ये जो ओपनिंग डार्मल लेयर में आ गया है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज डार्मल ऑस्टिया, ठीक है। तो बॉडी वॉल में और ऑस्टिया नहीं रहेगा, जैसे एस्कोन टाइप में बॉडी वॉल में ऑस्टिया था, वैसे इसमें और ऑस्टिया बॉडी वॉल में नहीं रहेगा। पिनाकोसाइट्स अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा, अपने जैसा कुछ सेल्स बनाएगा और अपने से थोड़ा आगे एक स्किन का लेयर का फॉर्मेशन करेगा। लेयर को हम लोग डार्मल लेयर बुला रहे हैं, और ऑस्टिया बॉडी वॉल से हट के इट विल कम वेयर, इनटू द डार्मल लेयर, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी वॉल का क्या होगा, ये जो बॉडी वॉल है इससे तो ये जो ऑस्टिया है वो तो डार्मल लेयर में चला गया, तो ये बॉडी वॉल का अब क्या होने वाला है। देखो यहां पे मैंने बॉडी वॉल को इस ब्लू आउटलाइन में ड्रॉ किया है। यहां पे मुझे दो लाइन बनाना चाहिए था, एक पिनाकोडार्म का और एक क्वानोडार्म का, लेकिन ये जो दोनों लाइन है ये एज ए होल, ये जो चंक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, बाहर से निकल के डार्मल लेयर बना, वो समझ में आ गया होगा। ये जो बॉडी वॉल अंदर का है, ये बॉडी वॉल अब ऐसा 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 बेंड होना चालू होगा, ठीक है। ये बॉडी वॉल और ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा। ये जो बॉडी वॉल तुम लोग को यहां पे दिखाई दे रहा है, ये बॉडी वॉल कुछ ऐसा बनना चालू हो जाएगा, देखो कुछ ऐसा बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। और अंदर का जो चंक है, वो अंदर का क्वानोडार्म भी कुछ ऐसे 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 होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे करके बेंड हुआ है, इसी को मैंने यहाँ पे ये ब्लू आउटलाइन में मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा, अब जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल में तुम लोग देख सकते हो कुछ कुछ और पोर्स ऐसा क्रिएट होगा और कुछ कुछ फोल्डिंग ऐसा भी आएगा, ठीक है। तो इस आउटलाइन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया है वो है डार्मल लेयर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है डार्मल लेयर। ऑस्टिया जो है वो बॉडी वॉल से हट जाता है, हट के वो डार्मल लेयर पे आ जाता है, तो डार्मल लेयर पे जो होल है उसको डार्मल ऑस्टिया, ठीक है। बॉडी वॉल, क्योंकि बॉडी वॉल में कुछ फोल्ड्स आना शुरू होता है, इसलिए बॉडी वॉल में यहां पे एक रूम बनता है। जैसे ही पहला फोल्ड वो लेगा, जैसे कि ये पहला फोल्ड ले रहा है, तो यहां पे बाहर की तरफ, ठीक है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि पहला जो फोल्ड लिया तो डार्मल लेयर एंड बॉडी वॉल के बीच में यहां पे एक रूम क्रिएट हुआ है। ये जो रूम यहां पे क्रिएट हुआ है, इस रूम को ये रूम, ठीक है ना, ये सब जो रूम है, ये इन रूम को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन रूम को हम लोग बुलाते हैं इनकरेंट कैनल, ठीक है। इस रूम को हम लोग इनकरेंट कैनल बुलाते हैं। अब तुम लोग देख सकते हो ये जो इनकरेंट कैनल है, ये जो इनकरेंट कैनल है, आईसी में यहां पे लिख देता हूं, इस इनकरेंट कैनल का जो पानी है वो यहां पे एक बॉडी वॉल में एक होल है, उस होल के थ्रू ये यहां पे आएगा। ये अंदर के तरफ का एक और रूम क्रिएट हुआ है ड्यू टू द फोल्डिंग। अंदर की तरफ का जो ये रूम क्रिएट हुआ है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग रेडियल कैनल बुलाते हैं। एंड इनकरेंट कैनल एंड रेडियल कैनल के बीच में एक होल है, उस होल को क्या बुला रहे हैं, प्रोसोपाइल, ठीक है। तो पानी इनकरेंट कैनल से रेडियल कैनल में जाएगा थ्रू दिस होल कॉल्ड प्रोसोपाइल। रेडियल कैनल से पानी जो है वो एक और होल के थ्रू कहां चला जाएगा, स्पोंजोसिल में चला जाएगा। ये जो होल है, इस होल को हम लोग क्या बुला रहे हैं, एपोपाइल, ठीक है। फिर स्पोंजोसिल से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउट, ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे पूछ सकते हो कि सर जब एस्कोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम ऑलरेडी था, ठीक है, जब एस्कोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम ऑलरेडी प्रॉपरली वर्क कर रहा था, तो इस तरीके का स्पॉन्ज को क्या जरूरत पड़ गया कि उसने अपने बॉडी को इस तरीके से मॉडिफाई किया, ज्यादा रूम बनाया, ज्यादा कैनल्स का क्रिएशन किया। क्या रीजन है, दो रीजन है। एक रीजन क्या है, जितना ज्यादा बॉडी में फोल्ड्स आएगा उतना ज्यादा पानी को एक चेंबर से दूसरा चेंबर जाना पड़ेगा। तो पानी जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम तक घूम रहा है, ज्यादा टाइम तक स्टॉक हो रहा है, ठीक है। एज वेल एज पहले हम लोगों ने एस्कोन टाइप में देखा था, कॉलर सेल्स जो है वो कॉलर सेल्स सिर्फ यहां प्रेजेंट है, दैट इज फेसिंग व्हाट, स्पोंजोसिल। एस्कोन टाइप में हम लोगों ने देखा कॉलर सेल्स आर देयर ओनली फेसिंग द स्पोंजोसिल। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कॉलर सेल स्पोंजोसिल में तो होगा ही, उसके साथ साथ कॉलर सेल एक और जगह में भी होगा। कौन सा जगह, रेडियल कैनल में भी होगा। तो अब समझ में आ रहा है बॉडी ने क्यों ये मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि बॉडी पानी को बॉडी ने अपना मॉडिफिकेशन इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि बॉडी पानी को अपने अंदर ज्यादा टाइम तक रखना चाहता है, ठीक है। पानी जितना ज्यादा चेंबर्स में घूमेगा उतना ज्यादा पानी बॉडी के अंदर रहेगा। एज वेल एज
कॉलर सेल्स का प्रेजेंस को भी दो लेयर में ले आया गया है। एक तो लाइनिंग द स्पोंजोसिल, उसमें तो है ही, पहले भी था, अभी भी होगा, लेकिन कुछ कुछ कॉलर सेल्स को और कहां सेटल किया गया, रेडियल कैनल में भी सेटल किया गया। तो अब जब पानी रेडियल कैनल में आएगा तो उस पानी से रेडियल कैनल में भी क्या होगा, फूड एब्जॉर्प्शन, फूड ट्रैपिंग, एज वेल एज जब पानी रेडियल कैनल से होते हुए, एपोपाइल से होते हुए स्पोंजोसिल में जाएगा तो वहां पे भी जो बेसिक फूड ट्रैपिंग है वो भी होगा। तो अब फूड ट्रैपिंग क्या हो रहा है, डबल जगह में हो रहा है। तो डबल जगह में जब हो रहा है, बॉडी को क्या मिलेगा, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, मोर न्यूट्रिशन, मोर डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनिज्म ने इस तरीके का मॉडिफिकेशंस बॉडी में इवोल्यूशन करने के चाहत में लाया है। ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को और मॉडिफाई करना चाहता है, और ग्रो करना चाहता है, और बेटर बनाना चाहता है। ये सब करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म को मेनली जो चीज चाहिए वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है। तो हाउ टू एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिशन, क्रिएट मोर रूम इन द बॉडी। सो वाटर जब बॉडी के अंदर आएगा तो ज्यादा रूम के थ्रू जब जाएगा तो ज्यादा वाटर रुकेगा, ज्यादा मतलब स्पीड नहीं होगा वाटर फ्लो का, वाटर फ्लो विल बी स्लो। और उस तरीके के वाटर फ्लो से अगर हम लोग कॉलर सेल्स के अमाउंट को बढ़ा दे तो कॉलर सेल्स क्या करेगा, उस वाटर से फूड ट्रैपिंग भी ज्यादा करेगा। मोर विल बी द फूड, मोर इज द न्यूट्रिशन, मोर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो यहां पे देखो वही लिखा है, स्पॉन्जेस एग्जिबिटिंग दिस कैनल सिस्टम, माने साइकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम, आर इवोल्यूशनरी मोर एडवांस्ड। ठीक है, एज दे कैन रिटेन वाटर लॉन्गर इनसाइड द स्पोंजोसिल, या फिर जो भी बॉडी मॉडिफिकेशन करके जो भी बॉडी उन्होंने बनाया है उस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा है कि वो ज्यादा वाटर अपने अंदर क्या कर सकता है, रख सकता है। ज्यादा टाइम तक वाटर को बाहर निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बॉडी में रूम ज्यादा है। दिस अलाउज, ये जो रूम ज्यादा बॉडी में क्रिएट हुआ इसके वजह से क्या होगा, दिस अलाउज मोर ट्रैपिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, मोर इज द फूड, मोर इज द डेवलपमेंट। एग्जाम्पल दे दिया है साइकोन और ग्रेंशिया। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स है जो साइकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम रखता है। साइकोन टाइप एक कैनल सिस्टम का भी नाम है और साइकोन एक स्पोंज का भी नाम है। साइकोन नाम का स्पोंज से ये कैनल सिस्टम डिस्कवर हुआ, इसलिए इसको साइकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, वाटर फ्लो पैटर्न, WFP माने वाटर फ्लो पैटर्न। देखो क्या होगा, बाहर से इनग्रेसिंग वाटर अब अंदर जाएगा, इनग्रेसिंग वाटर अब अंदर जाएगा वाया व्हाट, दिस होल इज कॉल्ड एज व्हाट, डार्मल ऑस्टिया। डार्मल ऑस्टिया से पानी कहां जाएगा, इस जगह पे जाके रुकेगा। ये जो चेंबर क्रिएट हुआ है बॉडी वॉल के कार्विंग के वजह से, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, IC माने इनकरेंट कैनल। इनकरेंट कैनल से पानी प्रोसोपाइल से होते हुए यहां जाएगा, प्रोसोपाइल से होते हुए यहां जाएगा। ये जगह कौन है, रेडियल कैनल। रेडियल कैनल में कुछ कुछ कॉलर सेल्स प्रेजेंट है, यहां मैं स्टार मार्क लगा के रख रहा हूं। स्टार मार्क इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसेसिंग कॉलर सेल्स। तो रेडियल कैनल में कॉलर सेल्स है, रेडियल कैनल का पानी से कॉलर सेल फूड ट्रैप करेगा, उसके बाद यहाँ का पानी इस होल के थ्रू, इस होल का नाम क्या है, एपोपाइल। देखो एपोपाइल के थ्रू कहा जाएगा, यहाँ ये क्या है, स्पोंजोसिल में भी क्या होगा, फूड ट्रैपिंग होगा क्योंकि स्पोंजोसिल में भी कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट। फिर स्पोंजोसिल से ऑस्कुलम से आउट। तो दिस इज योर साइकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम। ठीक है, नाउ वी विल मूव इनटू द थर्ड टाइप में क्या हो जाएगा, देखो पहला टाइप से सेकंड टाइप में जब हम लोगों ने आया, हम लोग को बॉडी में क्या मिला, ज्यादा रूम मिला। ठीक है, और वो रूम क्यों मिला, सो दैट ज्यादा कॉलर सेल हो सके, पानी ज्यादा स्टॉक में रह सके, पानी का मूवमेंट स्लो हो, ट्रैपिंग इजी हो। सेम चीज क्या होगा, ल्यूकोन टाइप में होगा। ल्यूकोन टाइप इससे एडवांस वाला सिस्टम है। अब ल्यूकोन टाइप भी क्या चाहेगा, और भी अपने बॉडी में और भी रूम क्रिएट करे। मोर इज द रूम, मोर विल बी द वाटर ट्रैपिंग, मोर विल बी द मतलब वाटर स्लोली मूव करेगा। तो जितना वाटर स्लो मूव करेगा उतना ज्यादा फूड ट्रैपिंग होगा। तो अब हम लोग चलेंगे ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम में। ठीक है, पॉज करके इसका वीडियो मतलब ये पोर्शन अच्छे से देख के इसका नोट बना लो। ठीक है, सो ये है द थर्ड एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनल सिस्टम जिसका नाम है ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम। ठीक है, एंड ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम्स आर फाउंड इन द मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व स्पोंजेस। जो बहुत ही रिसेंटली इवॉल्व होकर स्पोंज बना है उनमें ही हम लोग को ये वाला मिलता है। हेंस you can also say that Leucon type of canal system will be found in the most advanced type of sponges. Okay, so वही यहाँ पे लिखा है found in most advanced types of sponges. Example दे दिया स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पोंज। ठीक है, वाटर फ्लो पैटर्न हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग डायग्राम से कुछ चीजें समझ लेते हैं। साइकोन से बहुत ज्यादा सिमिलर है, कुछ चेंजेस है। जैसे कि देखो क्या क्या सेम रहेगा, डार्मल लेयर सेम रहेगा। ये जो हमारा ब्लू में है वहां पे भी मैंने लिखा है DL, यहां पे भी मैं लिख देता हूं DL। डार्मल लेयर सेम, डार्मल ऑस्टिया DO,
डार्मेल ऑस्टिया DO ये भी सेम है। पानी ingressing water will enter through Darmel ostia will go here, this is what incurrent canal, ये भी सेम है। इनकरेंट कैनल से पानी इसके थ्रू घुसेगा, ये कौन है, प्रोसोपाइल, ये भी सेम है। लेकिन साइकोन टाइप में हम लोग को क्या मिला था, प्रोसोपाइल से जब पानी घुसता है तो कहा जाता है रेडियल कैनल, यहां पे वो नहीं है। यहां पे हम लोग देखेंगे प्रोसोपाइल से जब पानी अंदर आएगा तो वो एक ऐसा चेंबर में आएगा जिस चेंबर का नाम क्या है, फ्लैजेलेटेड चेंबर, फ्लैजेलेटेड चेंबर, फ्लैजेलेटेड चेंबर, ठीक है। एंड फ्लैजेलेटेड चेंबर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फ्लैजेलेटेड चेंबर के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेलेटेड चेंबर के अंदर में भी कॉलर सेल्स आर देयर विथ सबसे लॉन्ग फ्लैजेला, सबसे लंबा फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलेटेड चेंबर के अंदर में ही होता है कॉलर सेल्स का। एंड हेंस दिस इज द फर्स्ट चेंबर ऑफ फूड ट्रैपिंग। इफ देयर विल बी मोर लॉन्ग फ्लैजेला तो पानी को मूव करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा उसका करंट स्लो हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला जो चेंबर है जहां पे फूड ट्रैपिंग होता है वो है फ्लैजेलेटेड चेंबर। एंड फ्लैजेलेटेड चेंबर ये नाम हम लोगों ने ऐसा क्यों दिया है, बिकॉज द कॉलर सेल्स ऑफ फ्लैजेलेटेड चेंबर हैज द लॉन्गेस्ट flagella present in them, which helps them in slowing down the water current, which helps them to do more food absorption, ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन जो है वो है वाटर करंट को स्लो करना। फ्लैजेलेटेड चेंबर से यू कैन सी, फ्लैजेलेटेड चेंबर में जब पानी आएगा उसके बाद फ्लैजेलेटेड चेंबर से एक होल है, उस होल के थ्रू इट विल कम टू अनदर कैनल, ठीक है। ये जो है ये मैं ये ऐसे राफली ऐसे बना देता हूं, तो ये एक और कैनल है, ठीक है ना, ये एक और कैनल है, ये ईसी जो मैंने लिख के रखा है ये एक और कैनल है। तो यहां पे हम लोग को रेडियल कैनल नाम नहीं मिलेगा, यहां पे हम लोग को मिलेगा एक्सकरेंट कैनल। एंड फ्लैजेलेटेड चेंबर से जो वाटर करंट थोड़ा स्लो हो गया है वो वाटर इस होल के थ्रू निकल के कहां आएगा, एक्सकरेंट कैनल में आएगा। ये जो होल है इस होल का नाम क्या है, एपोपाइल। सो द वाटर ऑफ फ्लैजेलेटेड चेंबर विल कम थ्रू एपोपाइल इनटू अ चेंबर व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सकरेंट कैनल, ठीक है। ईसी माने एक्सकरेंट कैनल, और एक्सकरेंट कैनल से जो पानी है वो उसका डायरेक्ट ओपनिंग है, एक्सकरेंट कैनल का डायरेक्ट ओपनिंग है इनटू व्हाट, स्पोंजोसिल, ठीक है। तो एक्सकरेंट कैनल में जब पानी आएगा, एक्सकरेंट कैनल से वो पानी डायरेक्ट स्पोंजोसिल में निकलेगा। अब एक्सकरेंट कैनल में भी हम लोग को कॉलर सेल मिलेगा एंड स्पोंजोसिल में तो कॉलर सेल्स हम लोग को मिलेगा ही। तो इन केस ऑफ ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम फूड ट्रैपिंग देखो कहां कहां हो रहा है, 3 जगह पे हो रहा है। पहला हो रहा है फ्लैजेलेटेड चेंबर में, फिर हो रहा है एक्सकरेंट कैनल में, फिर हो रहा है स्पोंजोसिल में, ठीक है। तो यहां पे वही you can see I have written the water flow pattern। तो वाटर यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, ingressing water, ठीक है, will enter through Darmel ostia, will go here incurrent canal, incurrent canal से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से होते हुए that water will come where, फ्लैजेलेटेड चेंबर, फ्लैजेलेटेड चेंबर से एपोपाइल, एपोपाइल से कहां आएगा, EC एक्सकरेंट कैनल, एक्सकरेंट कैनल से कहां निकलेगा, स्पोंजोसिल, स्पोंजोसिल ऑस्कुलम आउट। इंग्रेसिंग वाटर, डार्मेल ऑस्टिया, इनकरेंट कैनल, प्रोसोपाइल, फ्लैजेलेटेड चेंबर, ठीक है, एपोपाइल, एक्सकरेंट कैनल, स्पोंजोसिल, ऑस्कुलम आउट। स्टार मार्क हम लोग 3 जगह पे लगाएंगे क्योंकि 3 जगह पे फूड ट्रैपिंग हो रहा है। फ्लैजेलेटेड चेंबर में सबसे पहले वाटर करंट को स्लो किया जा रहा है, एक्सकरेंट कैनल में भी फूड ट्रैपिंग हो रहा है, स्पोंजोसिल में भी फूड ट्रैपिंग हो रहा है। तो मोर इज द चेंबर, मोर स्लोअर द वाटर विल मूव, मोर टाइम द वाटर विल टेक टू एंटर एंड एग्जिट, okay, more will be the food trapping, organism will get more nutrients, it will get more developed। so these are your 3 types of canal system, ठीक है। एक और कैनल सिस्टम है जो ल्यूकोन टाइप का ही हिस्सा है, उसको हम लोग रेगोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम बोलते हैं। तो लेट्स सी उसको रेगोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम क्या है, किसमें पाया जाता है, क्यों बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ है, इसका अच्छे से नोट बना लो। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम बहुत प्रिसीजन से ड्रॉ करना है एंड वाटर फ्लो पैटर्न याद रखना है, इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। So this is the Ragon type of canal system that I am talking about. Now before we go into the Ragon type of canal system, you must understand this fact that in phylum sponges, though you don't need to go to the class level, but still I am discussing it because it is related with this. In phylum sponges, we know that the lower taxonomic hierarchy to the phylum is what? Is क्लास, है ना, फाइलम के नीचे क्लास आता है। सो हाउ मेनी क्लासेस डज स्पॉन्ज हैव? स्पॉन्ज हैज 3 classes, and what are those 3 classes? The first class is called as Chalcospongiae, the second one is called as Hyalospongiae, and the third one is called as Demospongiae, spongy,
ठीक है। सो दीज आर द 3 क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना। तो क्लास 3 द डेमोस्पोंजी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ स्पॉन्जेस। जिस स्पॉन्जेस में सबसे एडवांस टाइप ऑफ फीचर्स है, जैसे कि ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम, हैविंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्पिक्यूल्स, हैविंग बेटर एडेप्टेबिलिटी, whatever is the most advanced features in the sponges, all those sponges they belong to the class 3 of phylum sponges, that is Demospongy. So in Demospongy we see that in Demospongy they have a larva present. Their development is not direct, their development is indirect. Direct development किसको बोलते हैं? जब डायरेक्टली योंग वन बाहर आता है एंड योंग वन रिसेंबल्स एग्जैक्टली लाइक एडल्ट। देखने में छोटा होगा बट देखने में एडल्ट के जैसा ही होगा। जैसे कि हम लोग, हमारा जब जन्म होता है, आवर डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड टू बी डायरेक्ट, बिकॉज हम लोग जब जन्म होते हैं तो एक बच्चा देखने में जैसा होता है वो एडल्ट के जैसा ही तो होता है, बस हाथ पैर छोटा है। फीचर्स का मतलब जो फीचर्स एडल्ट में है वो एग्जैक्ट फीचर उसमें भी है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन बाद कोई नया फीचर आएगा, फीचर्स उतना ही है, बस उस फीचर्स का ग्रोथ एडल्ट से कम है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हम लोग किसको डाल सकते हैं? फ्रॉग को डाल सकते हैं। फ्रॉग का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर, उस एग से क्या बनता है? टेडपोल। नाउ टेडपोल एंड फ्रॉग दे आर नॉट सिमिलर। टेडपोल में लंग्स नहीं है, एडल्ट फ्रॉग में लंग्स है। टेडपोल में टेल है, एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं है। तो कुछ कुछ क्या है? स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, कुछ कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है। अगर एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहता है, एग, ठीक है ना, या फिर जाइगोट एंड एडल्ट के बीच में अगर कोई एक लार्वल स्टेज है, इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इनका भी ऐसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दे हैव अ लार्वल स्टेज प्रेजेंट, ठीक है। तो डेमोस्पोंजी जो क्लास है, इसका जो लार्वा है, इसका लार्वा को हम लोग क्या लार्वा बुलाते हैं? इसका लार्वा को हम लोग बुलाते हैं रेगोन लार्वा। डेमोस्पोंजी में जितना भी स्पोंजेस है उन सबका जो लार्वा होगा, उस लार्वा को ऐसे ही हम लोग, माने कलेक्टिवली बोलो, हम लोग एक नाम से बुलाते हैं। एंड क्या नाम है? नाम है रेगोन लार्वा। क्यों दिया हम लोगों ने ये नाम? क्यों हम लोगों ने इसको रेगोन लार्वा बुलाया? बिकॉज द शेप ऑफ द लार्वा रिजेंबल्स टू अ रेगोन, ठीक है, इट रिसेंबल्स टू अ रेगोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। रेगोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कैसा स्ट्रक्चर को हम लोग रेगोन बुलाते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका होता है फ्लैटेंड बेस, यू कैन सी फ्लैटेंड बेस एंड अ कोनिकल एपिकल एंड। एपिकल माने होता है ऊपर का, तो ऊपर का जो एपिकल एंड है, ये बेसल एंड है, बेस, ये एपिकल एंड है ऊपर, एंटेरियर पोर्शन। तो एपिकल एंड कोनिकल होना पड़ेगा एंड बेसल एंड फ्लैट होना पड़ेगा। तो जिसका बेसल एंड फ्लैट है एंड कोनिकल, एपिकल एंड कोनिकल है, इस तरीके का शेप को हम लोग रेगोन बुलाते हैं। एंड बिकॉज ये लार्वा रेगोन शेप रिजेंबल करता है, इसलिए हम लोग इसको रेगोन लार्वा बुला रहे हैं, ठीक है। एक और यूनिक नेचर ये है कि जो लार्वा होता है, उस लार्वा में जनरली ये जो कैल्सीस्पोंजी का लार्वा होगा, हाइलोस्पोंजी का जो लार्वा होगा, ठीक है, इन लार्वा में हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये लोग लार्वल स्टेज में रहता है तो इन लोगों में होता है एस्कोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम। बाद में जब लार्वा एडल्ट बनता है तब उनमें आ जाता है साइकोन या फिर ल्यूकॉन। लेकिन लार्वल स्टेज में उसमें थोड़ा सा कम कैरेक्टर्स रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेडपोल एंड फ्रॉग का कंपैरिजन करें, टेडपोल कैन ब्रीथ ओनली विद द हेल्प ऑफ गिल्स, लेकिन एक एडल्ट फ्रॉग कैन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्किन, विद द हेल्प ऑफ लंग्स, विद द हेल्प ऑफ एक केविटी है जिसको हम लोग बाकोफेरिंजियल केविटी बुलाते हैं। वो बाद में मैं समझाऊंगा जब फ्रॉग आएगा, बाकोफेरिंजियल केविटी क्या है उसमें मैं समझाऊंगा। तो 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है इन एडल्ट फ्रॉग, बाकोफेरिंजियल केविटी, स्किन, लंग्स, ठीक है। लेकिन टेडपोल में सिर्फ एक ही ब्रीदिंग फीचर है, दैट इज गिल्स। तो हम लोग क्या देखते हैं, जनरली ये दस्तूर है, ये नियम है कि जब एक लार्वा होता है या लार्वल स्टेजेस में जब किसी का लाइफ चल रहा होता है तो लार्वल स्टेज में उसमें फीचर्स, कैरेक्टर्स कम होगा इन कंपैरिजन टू द एडल्ट। जो कम कैरेक्टर है वो एडल्ट में जाके डेवलप्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा। तो इन दोनों क्लासेस का जो लार्वा है, इनमें हम लोग देखते हैं कि लार्वल स्टेज में इनमें एस्कोन टाइप है, लेकिन जब ये लार्वा एडल्ट बनता है तब उसमें साइकोन या ल्यूकोन टाइप आता है, माने एडवांस कैरेक्टर आता है। डेमोस्पोंजी का जो लार्वा है जिसको हम लोग रेगोन लार्वा बोल रहे हैं, इस लार्वा का यूनिक नेचर ये है कि ये लार्वल स्टेज से ही ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम को बियर करता है। और जब ये लार्वा एडल्ट बनेगा तब भी ल्यूकोन रहेगा और लार्वल स्टेज में भी ल्यूकोन रहेगा। इस नियम के हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए था, लार्वल स्टेज में एस्कोन या साइकोन होना चाहिए था और जब ये एडल्ट बन रहा है तब ल्यूकोन आना चाहिए था। लेकिन इसमें, इस लार्वा में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी लार्वल स्टेज, इसमें सबसे वेल डेवलप्ड कैनल सिस्टम आ जाता है
और वही कैनल सिस्टम को ये कंटिन्यू करके एडल्ट में भी ल्यूकोन टाइप ही रहता है। ठीक है, तो ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल, रेगोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इज नॉट एनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम, ये ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम ही है, लेकिन बिकॉज इतना सारा यूनिकनेस इसमें है कि इसमें एस्कोन साइकोन आना चाहिए था, नहीं आया, ल्यूकोन टाइप पहले ही आ गया, प्लस लार्वा का नाम, इसलिए द ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम विच विल बी प्रेजेंट राइट फ्रॉम द लार्वल स्टेज ऑफ रेगोन लार्वा, हेंस रेगोन लार्वा का कैनल सिस्टम को हम लोग रेगोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम बुलाते हैं, ना कि ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम बुलाते हैं। ल्यूकोन टाइप ही, लेकिन रेगोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम बुलाएंगे, यही लिखा है यहाँ पे। द नेम इज रिलेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इन द रेगोन लार्वा। रेगोन लार्वा बिलोंग्स टू क्लास 3 डेमोस्पोंजी। ठीक है, क्यों रेगोन लार्वा बुला रहे समझा दिया, क्यों इस कैनल सिस्टम को रेगोन टाइप बुला रहे वो भी समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का कैनल सिस्टम का डिस्कशन खत्म होता है। अब मैं कुछ जनरल डिस्कशंस कुछ बाकी है वो करके, एक नोट का पेज होगा वो मैं अटैच कर दूंगा, उससे तुम लोग को देख के अपना नोट्स भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख लो। So this is the next portion. Here we are going to talk about 2 columns only. इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स का नोट्स है वो मैं तुम लोग को ऐसे ही भेज दूंगा, तुम लोग पढ़ के लिख लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 चीज के बारे में बात करेंगे, 2 ही कॉलम, एक है डेवलपमेंट, दूसरा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट में हम लोग ऑलरेडी अभी बात किए हैं कि इनका डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, दे हैव अ फ्री स्विमिंग फ्लैजेलेटेड लार्वा। नाउ यू कैन आस्क मी कि सर एडल्ट होता है सेसाई और लार्वा होता है फ्री स्विमिंग, ऐसा क्यों? रीजन यहां पे लिखा हुआ है, लार्वा आर फ्री स्विमिंग टू फैसिलिटेट व्हाट, डिस्पर्शन, एक जगह से दूसरा जगह जा सके, देयर बाय प्रिवेंटिंग व्हाट, हाई कंपटीशन। समझ में आया कि नहीं? एक जगह में अगर सब लार्वा मूव नहीं कर पाता है और एक एडल्ट क्या करता है, जाइगोट बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कुछ भी करके वो एक नेक्स्ट जनरेशन को ला रहा है और सारा नेक्स्ट जनरेशन बोले एक ही जगह पे सेटल हो गया, तो हाई कंपटीशन हो जाएगा उस जगह पे। उस कंपटीशन में क्या होगा, वो लोग प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा, डिवीजन ऑफ फूड हो जाएगा। अगर लार्वा स्विमिंग का एबिलिटी होगा तो उस जगह से क्या करेगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और उस डिस्पर्शन के वजह से कंपटीशन बिटवीन द एडल्ट स्पॉन्जेस, जब ये लार्वा एडल्ट बनेगा तब कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, साचेस कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिया है, इन एग्जांपल से कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी डाल दिया जाता है। ठीक है, 2 एग्जांपल दिया है, साचेस एम्फीब्लास्टुला, इट इज अ होलो लार्वा ऑफ साइकन, पेरेन्काइमुला, इट इज अ सॉलिड लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। सॉलिड होलो तो समझ में आता है, इट इज जस्ट लाइक द नोटोकॉट एंड स्टोमोकॉट का फिनोमिनन यहाँ पे अप्लाई करना है। रिप्रोडक्शन हमको पता है, स्पॉन्जेस का 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये भी हम लोगों ने पहले बात किया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बाद में डिस्कस कर रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्पॉन्ज कब करता है, जब आता है इनका ब्रीडिंग सीजन अंडर फेवरेबल कंडीशन, दैट मींस हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वेरी हाई वाटर करंट, ये सब सिचुएशन होता है इनका फेवरेबल सिचुएशन। बिकॉज जब हाई वाटर करंट होगा तभी तो जार्म सेल स्पर्म बना के क्या करेगा, वाटर में छोड़ देगा, वाटर लेके निकल जाएगा, दूसरे स्पॉन्ज के बॉडी में घुसा के फर्टिलाइजेशन कर देगा। दूसरे स्पॉन्ज के बॉडी में घुसा के फर्टिलाइजेशन कर रहा है, माने फर्टिलाइजेशन हो रहा है दूसरे स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर। इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन सिटू फर्टिलाइजेशन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन सिटू फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेम चीज है। एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होगा, ये मैंने बहुत बार समझाया है कि एक इंडिविजुअल का जब 2 गेमेट फॉर्म होगा, दोनों का सरफेस केमिकल का कंपोजिशन सेम होगा, सच सेम कंपोजिशन ऑफ सरफेस केमिकल डज रिपल्शन, लेकिन एक स्पॉन्ज का स्पर्म जाके दूसरे स्पॉन्ज के ओवा को फर्टिलाइज कर सकता है, बिकॉज उन दोनों का जो सरफेस केमिकल का कंपोजिशन होगा वो थोड़ा होने से भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और उस डिफरेंस के वजह से देयर विल कम एन अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन, अच्छे से नोट बनाओ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं, एंड दैट विल बी द लास्ट फॉर टुडेस लेक्चर। ओके, so this is the part of your asexual reproduction. ठीक है, and in asexual reproduction we are going to get 2 types of asexual reproduction that a sponge can do. Among these 2 types of asexual reproduction, the first type is called as fragmentation. So what happens in fragmentation, the entire body of the sponge, when the unfavorable condition comes, generally sponges does asexual reproduction only under unfavorable conditions. So whenever unfavorable condition will come, there is no water, there is no water current, that type of condition, dry, so at that condition the mother sponge will die.
but before the mother sponge dies, it can do two things. It can do fragmentation, the first type of asexual reproduction. In fragmentation, the mother splits its body into several fragments, and each of those fragments will show regeneration to form a complete whole sponge. अब तुम लोग बोल सकते हो सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मदर जो अपने आप को सेवरल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, उन फ्रेगमेंट्स में कौन होगा बोलो, उन फ्रेगमेंट्स में प्रेजेंट होगा आर्कियोसाइट, द टोटिपोटेंट सेल. एंड एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास, द टोटिपोटेंट सेल हैज द एबिलिटी ऑफ टर्निंग इटसेल्फ इनटू एनी अदर सेल. जो भी सेल उसको बनाना है वो अपने आप को कन्वर्ट करके वो सेल बना सकता है. तो जब मदर अपने आप को सेवरल फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगा या डिवाइड करेगा, ईच ऑफ दोस फ्रेगमेंट्स आर गोइंग टू हैव some archaeocytes with them, and those archaeocytes will show that regeneration thing. They will convert themselves into the necessary cell, they will do mitosis, they will increase the number, and this will give rise to the formation of a complete sponge from a fragment of the mother sponge. This is called as fragmentation. ठीक है, body splits into many fragments and each fragment shows regeneration to become an adult sponge. This is first type. The second type is called as gemule formation or internal budding. कभी कभी सिचुएशन वही सेम अनफेवरेबल होने से मदर क्या करता है, मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले मदर अपने बॉडी के अंदर, इनसाइड इट्स बॉडी, विद इन इट्स बॉडी, मदर इज गोइंग टू फॉर्म सम स्मॉल बड्स, सम स्मॉल gemmules. Okay, whatever you call it as small buds or small gemmules, the mother will form inside its body. Okay, how that small gemule or that small bud looks like? It looks like something like this that I have drawn in the board. Okay, it will have an outer membrane, it will have an inner membrane, and both these outer and inner membrane will be made up of glycoprotein. The cells of the mother will make it. Okay. In between the outer and inner membrane, there will be present some collagen fibers, and from those collagen fibers comes out some spicules. So I have already discussed that what is the necessity of collagen fibers, from where the spicules comes out. The collagen fiber is going to provide that stability from where the spicules can come out. Okay, and in the center you can see there is a chamber kind of structure present, and that chamber opens like this with the help of a tube. This tube is called as micropylar tube. The chamber which is present inside of each gemule, what is present inside that chamber? Inside that chamber is present many cells, many archaeocyte cells which will be present inside. And archaeocytes are what? Totipotent cell. So whenever the favorable condition will come from this micropylar tube, these archaeocytes are going to come out, and then these archaeocytes are going to modify themselves into different other types of cell, pinacocyte, sporocyte, guanodam. Okay, that means collar cells, mesohylica cell, जो भी अलग अलग में कन्वर्ट करेगा, करके क्या करेगा, एक होल स्पॉन्ज बना देगा. तो फिनोमिनन इसका और इसका सेम ही है. मेन फिनोमिनन ये है कि ये भी एक बड से कैसे होल स्पॉन्ज बन जाएगा, आर्कियोसाइट का खेल है. ऊपर वाला कैसे एक फ्रेगमेंट से होल स्पॉन्ज बन जाएगा, आर्कियोसाइट का खेल है. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल बडिंग में द मदर स्पॉन्ज डाइज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर्मिंग सम इंटरनल बड्स और जेम्यूल. दिस इज हाउ इंटरनल बड और जेम्यूल लुक्स लाइक. मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, फिर से जब पानी आ जाएगा, बारिश होगा, पानी आ गया, पूरा वाटर करंट ठीक हो गया, आर्कियोसाइट्स कम्स आउट वाया एमएन माने माइक्रोपाइलर एंड. इसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बुला रहे हैं. The archaeocytes will come out from the micropylar end and division of labor will take place. Archaeocyte निकल के बोलेगा मैं ये बन जाता हूँ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ. हम लोग अगर अलग अलग ये वो बनेंगे तो एक साथ मिलके एक स्पॉन्ज बना सकेंगे. तो यहाँ पे मैं अपना स्पॉन्ज पार्ट 3 का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ. ठीक है, अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, एंड देन आई विल अटैच वन पेज इन द लिंक दैट आई विल शेयर इन गूगल क्लासरूम. उस पेज से देख के भी तुम लोग को कुछ पॉइंट्स ऐड करना है. नेक्स्ट क्लास में सिलेंडरेटा के साथ मिलते हैं. आई माइट मेक इट टुमारो ऑल्सो. ठीक है, सो टुमारो मे बी यू विल गेट योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिलेंडरेटा मे बी. ओके, सो सी यू टुमारो. बाय बाय.